अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली इजलास में हिंदुत्व को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। खिताब में कहा कि गरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन के हिस्से में सिर्फ जिल्लत आई। 7 तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी की पूरी दुनिया मोतरफ है। पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उससे ठुकरा कर हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। वजीर आजम ने पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी का भी पर्दाफाश कर दिया। वाज़ेह किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरी अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। Pulsing the enemy's attack, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. And to every Pakistani, you stood as one unbreakable wall, a Bunyanum Marsoos. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. It attacked our cities and targeted our innocent civilians. With the right of self-defense, our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. We will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. इसराइली कब्जे को 80 साल बीत गए। फ़लस्तीनी कई दहाइयों से अपनी ही सरजमीन पर अजनबी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसले फ़लस्तीन पर भी ज़ोरदार आवाज़ उठा दी। बोले, मगरबी किनारे पर हर गुजरते दिन के साथ इसराइली जारहियत बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीनियों पर रोज़ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गज़ा पर भी इसराइली जारहियत इंतहा को छू गई। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन शहीद हो रहे हैं। Of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland in the West Bank. Each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated and liberated with full commitment and with full force. वज़ीर आज़म की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हॉल। तारीख में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने तालियां बजाईं। शहबाज शरीफ की तकरीर को खूब सराहा गया। The skies resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response, ladies and gentlemen.
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुनफरद अंदाज। वो फ़लस्तीनी किफ़ाया पहनकर इजलास में शरीक हुए। अहले गज़ा से इज़हार यकजहती किया। इसराइली और भारतीय आग बगूला हो गए। दहशतगर्द रियासत इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बॉयकॉट किया गया। सफ़ाक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। दुनिया की अमन की पुकार नज़रअंदाज करते हुए अपनी तकरीर में अहले गज़ा पर जुल्म सितम जारी रखने का ऐलान कर दिया। गजा पर कब्जा, 6 मुल्कों पर हमला और मजलूम बनने का ड्रामा। नेतन्याहू की डटाई ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म जनरल असम्बली में धड़ल्ले से तकरीर करने आए। बेशतर ममालिक के मंदोबैन ने हजारों फलस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकआउट किया। नेतन्याहू ने तकरीर में गिनती के 4 यरगमालियों का रोना रोया। गजा पर मजीद जुल्म सितम ढाने का इंदिया दिया। ईरान, इराक, यमन और शाम का नक्शा दिखाकर उन्हें दहशत गर्दों की फैक्ट्री करार दिया। दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की। नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की। अमरीकी सदर को इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी करार दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान गर्म जोशी और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात 55 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार और दोस्ताना माहौल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक़ पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ हैं। उन्होंने ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला क़यादत को सराहा, जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम की और इस तरह जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। खास तौर पर इस हफ्ते के शुरू में मशरक़ वस्ता, बिलखुसूस गजा और मगरबी किनारे में अमन की बहाली के लिए जामा तबादले के लिए न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के उनके इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने टैरिफ मुआहदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका दोनों ममालिक के बाहमी फायदे के लिए शराकत दारी को मजीद मजबूत किया जाएगा। आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान है। Leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. और आईसीसी ने भारतीय कप्तान की सारी अकड़ निकाल दी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सूर्या कुमार यादव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया। साहबजादा फरहान को सिर्फ वार्निंग जारी की। जेंटलमैन गेम क्रिकेट के साथ खिलवाड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहतजाज, भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव के सारे भरम ठंडे कर दिए। भारतीय कप्तान आईसीसी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए। कौंसिल ने मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की पेशी का फैसला भी सुना दिया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का जुर्माना आयद किया गया। साहबजादा फरहान को सिर्फ वार्निंग दी गई। आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को लेवल 1 जुर्म का मुर्तकब करार दिया। अभी आपको ये बताएं कि सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने हुकूमत पंजाब पर जवाबी वार कर दिया। मरियम नवाज के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्डिंग भी चला दी। कहा, पीपी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती, तहाँ मुतासरीन के साथ खड़े हैं। कहा, इशूज़ पर सियासत का मकसद टिकटॉक पर तशहीर है। मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें। सैलाब पे सियासत नहीं करें, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उस बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उनके अपनी बहनों से, उन मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। ना कभी हमने चाहा कि ये इशू पॉलिटिसाइज हो। पॉलिटिसाइज वो करते हैं जो इस पर सियासत करते हैं या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं। हर अपने इवेंट्स को, अपने बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करेंगे।
न करना चाहेंगे। हम आज भी हर मुमकिन सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध तैयार है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज्जत शख्स भी हैं। अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें। सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पे क्या हुआ, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, लाहौर आने की दावत दे दी। कहती हैं पंजाब में होने वाला काम खुद आकर देखें। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता बरस किसानों को 55 अरब और रवा बरस में 98 अरब रुपए का रिलीफ दिया। ज़राअत का बजट करीब 130 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड से 60 अरब रुपए से ज़ायद की खरीदारी हो चुकी है। मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता बरस 9500 ट्रैक्टर दिए और गंदम की काश्त पर 14 अरब रुपए का सपोर्ट प्रोग्राम दिया। पंजाब में गंदम की पैदावार 22 मिलियन मेट्रिक टन से ज़ायद, जबकि सिंध में सिर्फ 4.5 मिलियन टन गंदम पैदा करता है। सिंध हुकूमत अपने मुतासरीन को दिया गया रिलीफ कौम के सामने रखे। सिंध काबीना में उखाड़ पछाड़, सईद गनी से महकमा बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान मिल गया। इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध काबीना में तब्दीली, हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद हुई। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इस्माइल राहू से हल्फ लिया। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली, सूबाई वुज़रा, मुशीर, IG सिंध और दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। सैयद नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का वजीर मुकर्रर कर दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दे दिया गया। मखदूम महबूब जमान को महकमा खुराक, जाम खान शोरो को महकमा आबपाशी, मनसूबाबंदी और तरक्यात, जबकि नए वजीर इस्माइल राहू को बोर्ड्स और जामियात का कलमदान सौंप दिया गया। डॉक्टर शाम सुंदर को महकमा अक़लियती उमूर, जबकि माविन खुसूसी मोहम्मद अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। वुज़रा के कलमदानों की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी सुपर एक्ट्रेस हानिया आमिर की बांग्लादेश में धूम, ढाका की गलियों में मसालेदार और चटखारेदार बंगाली फूड पर हाथ साफ किया। बांग्लादेशी व्लॉगर अफसान भी चंचल हालिया के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर व्लॉग ने व्यूज़ के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त देते हैं। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।